last correspondent. Along with it, we also just tried to record it and visit. I request the cameraman please come and just give a shot, right? And it is all happened all because of our guidance, right? Which is given by our mentor, Mr. Bankim Jula sir. And I think without his direction, it can't be possible. So thank you so much. So really, I'm very much grateful to my the son of our IHM Gwalior, and I'm very much elated and honored to hear that they are indebted not to me, but to the institute, because institute is above all. Okay. Now we have got Mr. Par Vijay Bargia. Last but not the least, please share your opinion and views with everybody. Namaste everyone. Today we have made a Rajasthani menu, and it is very large menu that we have prepared. And the one thing I would like to share, like, we have done this on time, or I can say before time. And in before time we have also made the extra additional dish. Like, we have made 4 or 5 extra dishes. Okay, very good. So well said. Now I will request Mr. Rajat, who is a staff member out here. So Mr. Rajat, please come here, and being an F&B expert, to please share some of your views with today's presentation, which is a Rajasthani buffet setup, that Indian buffet setup. So throw some light over it. Welcome, sir. Okay, so I must say one thing that is very simple and common term. It says that in time will be time. The more you present it like this way, this will cost you more. You can charge guests with the more. Okay, right, chicken. Anyway, it's looking good, fine. Just everything is okay, but only thing is that try to put a bread basket for this breads. That will look better. Okay, I understand. But just to get a permission from them. I think it's very good, nice, looking attractive, very colorful first of all, and there's a color combination is very nice. That is the thing. Okay. Yeah, that's it. Keep this plate up. So thank you, Mr. Rajat. And now I have invited Mr. Dinesh ji, and let us see. I think he's on the way. But one thing is, I will tell you few things, that color is such a thing. If it is not combined in a proper manner, it will not give you the sensation also. So color choosing sensation is very much within the student. They have chosen it in a wide manner, and they have given a very big look into it. Now regarding the texture and the look of the food, I will pass few of the comments. As far as the dishes are concerned, color contrast is very good. Okay, I will not taste right now because everybody will taste together. Rice has got the colorfulness. I can see the yellow color, saffron color, light yellow color, topped with the gatti. I can see the laddu, churma laddu, that has got a typical Indian touch with the rose petals. I can see the papad. Papad is, though it's like simple, but it has got an Indian touch also. Salad has got a very big like greenish touch and an Indian touch. Paratha is totally different. It has got the engravings inside it, and there are like various like rows and columns, which gives it a totally different like texture. As far as this chila raita is concerned, you can see that the chila raita has been served in the like mud container, earthenware container, and it's totally different. Itself is an indication of the Rajasthani cuisine. This is like Rajasthani kuba paratha, kuba roti. That is totally different. You can see how it is somewhere working as a like in between as the paratha and the roti, and it's totally giving a different look. As far as the other things are concerned, like masala aloo, then dal, then bada, mirchi bada, all have got their uniqueness. And this term is very much like clear and very much evident that there is unity in diversity and diversity in unity. And that's the beauty of our country. We are having various minds, we are having various problems, various issues, but yes, when the unity is concerned, we are one and we are for everybody. And we want to lead for the mankind, we want to lead for our students, and we want to lead for our organization. So that was the thing, and from everybody, I will also like collect the blessings that in future batch also I will be able to give this kind of teaching, and to everybody
make it a very clear-cut point that wherever you are, you please have like faith on you that I can do. This is the biggest mantra, and you will be able to come up with good result and with flying colors. Thank you very much. Good day. Thank you. Now, हम लोग देख रहे हैं कि हमारे सामने जो राजस्थानी फूड एक्सपर्ट है मिस्टर दिनेश कुमार श्रीवास्तव जी, वो हमारे सामने आ चुके हैं और उनको मैं दो शब्द कहने के लिए बोलूंगा कि राजस्थानी मेनू सेटअप है जो कि नेशनल काउंसिल का सेकेंड लास्ट चैप्टर में है। तो आप दिनेश जी दो बात कहकर हमारे बच्चों को थोड़ा सा प्रोत्साहित करें कि आपको कैसा लग रहा है ये राजस्थानी मेनू सेटअप। थोड़ा मोटिवेट होने की ज़रूरत है। मिर्ची आपने अच्छा प्रयास किया और बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर है। लेकिन ये है ना, जो मिर्ची बड़ा है ना, ये कभी कट के नहीं जाते कभी। ये मिर्ची बड़े ना थोड़ा ये काट के नहीं जाने चाहिए। बाकी आपकी प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है और गार्निश बढ़िया है। याद रखो, बंगाली कुजीन में गार्निश कभी नहीं होती। मैं आपको बता रहा हूँ, ये राजस्थान कुजीन में ना, इसमें जो इसका जो जान है ना, वो है टेम्परिंग, तड़का, बघार, सौंफ, पर्यायवाची शब्द है, ठीक है ना। तड़का, बघार, छौंका, ये सब चीज़ है। चाहे मिर्ची की सब्जी, राजस्थान में ट्रेडिशनल है मिर्ची की सब्जी, मिर्ची के टपोर, जैसे टपोर है नहीं, मिर्ची की सब्जी पूरी। जैसे आपका सैलान बनता है ना, सालन बनता है ना, सालन, वैसे ही मिर्ची की सब्जी है राजस्थान में। वो केवल मिर्ची से बनेगी और उसमें आप जो मॉडिफाइड किया है कि उसमें थोड़ा ग्रेटेड करके पनीर डाल देते हैं। पहले तो उस जमाने में जब बनता था ट्रेडिशनल, तो पीनट, तिल सीड और थोड़ा सा गुड़ और उसको अच्छे क्यूमिन सीड और रोस्ट करके उसको पीस लिया और उसको मिर्ची दिया और फिर उसको पीनट ऑयल में धीमे जा, तो एक हल्की सी मिठास, समझे ना, ठीक है। और पालक की कड़ी होगी या बथुआ की कड़ी होगी या उसका बाजरा का रोटली। राजस्थान का जो कुजीन है ना, वो कच्छ, गुजरात और जो ये है ना, ये सारा एरिया जो कनेक्टेड है ना, तो काफ़ी हद तक गुजरात और राजस्थान का जो फूड है ना, कच्छ वाला जो क्षेत्र है, ठीक है ना, मारवाड़ी लोग जो है, ठीक है ना, वो तो वहाँ पे आपको काफ़ी टचिंग मिलेगी, ठीक है ना। वो आपने बहुत बढ़िया किया, अच्छा है, सब कुछ है। ये क्या है आपने? खोवा रोटी, ठीक है। आपने रोटी बनाएगी, क्या डाला? What is the definition of खोवा रोटी? Khoba is just a design. खोवा, खोवा का मतलब होता है ये और कोई मतलब नहीं। अब आप सुनो, जहाँ से भी आपने मुझे तो लगता है जो आपने जो सीखा वो आपने YouTube से देख के सीखा ना, या किसी से देख के सीखा। एक्चुअली जो लाल गेहूँ होता है ना, लाल गेहूँ, इसको बोलते हैं कठिया गेहूँ, नाम सुना होगा कठिया गेहूँ है। जो लैक्टेस वुमेन होती है, बेबी जन्म देते हैं बच्चे को, तो उस समय उस लेडीज को उस चीज़ का खिलाया जाता है, गुड़ का दलिया मिला के कठिया गेहूँ में। वो कठिया गेहूँ का मोटा वाला आटा और उसमें थोड़ा मोहन डाल के फिर वो एक कोआ बना के उसको वजह किया जाता है, ठीक है। और ये पुलाव क्या लिखा है? राम पुलाव। लड्डू आप बहुत बढ़िया, चलो लड्डू सही बनाया आपने, अच्छा कोशिश किया है आपने, बढ़िया बनाए, अच्छा बनाया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, लड्डू सही बनाया। ये क्या बनाया? मसाला बाटी। ये अंदर से कुक है? नहीं सर, पहले कुक करके
बॉईल किया, स्टीम किया, क्या किया, क्या किया आपने बताओ? आपने बोला ना कुक, ये तो घी है, ये तो घी है, यस सर। ठीक है। अगर ये बाटी अगर खुली कुक होती ना तो ये क्या होती, ये सारा घी अब्जॉर्ब हो चुका नहीं होता। सर, ऊपर से हमने एज ए गार्निश डाला है ये देखो, सर, कुक के अंदर। ये देखो ना आप, सर पहले इसको कुक करके उसके बाद डाला। अरे देखो ना आटा, आटा, आटा मान लेना, ये पूरा आटा है, कच्चा आटा है, कच्चा आटा है, ये है चूरमा लड्डू, पोहा रोटी, मिर्च बड़ा, बहुत एक्सीलेंट है। ये थेपला बनाया, क्या बनाया आपने? मसाला बना, बढ़िया है, बहुत अच्छा है। राम पुलाव बढ़िया है आपका। ये बेटा, ये इसमें आपने क्या किया, आपको मेरे कंसेप्ट सीख लो, सबके साथ मैंने बहुत काम किया है और सर इतने बड़े फंक्शन करा चुके हैं, इतने बड़े, जो आपने अभी इमेजिन कर भी नहीं सकते आज के इस दौर में। आई समय 4 दिन मुगले हाँ मुझे, और 3 दिन तक, और पूरा सरका है और पब्लिक के लिए ओपन था, पब्लिक आ रहे थे, इतना डिमांड था कि सर पैसा दो यार, आपको कितनी मिल रही है, और 500 रुपये सर, उसमें 400 रुपये, 500 रुपये, और वो धड़ल्ले से था। तो सच के सानिध्य में रहकर मैंने बहुत, सर ने मुझे प्लेटफॉर्म हमेशा दिया, हमेशा प्लेटफॉर्म दिया और मैंने भरपूर इसका यूज किया। बहुत सही है। तो आपका नंबर 1 तो चूरमा लड्डू, अच्छा प्रयास है, लेकिन अच्छा प्रयास है, बहुत बढ़िया है। तो ये आपने क्या बनाया? मारवाड़ी दाल। एक बात बताओ, मारवाड़ी दाल और प्लेन दाल में क्या अंतर है? आपने अगर अपन नाम जोड़े, राजस्थानी दाल, ग्वालियर दाल, तो मारवाड़ी दाल, क्या छौका, क्या छौका बताओ ना? तड़का सर, मिर्च का तड़का। इसमें और नीचे क्यूटी के भी डालते हैं। राजस्थानी में सर तड़का, राजस्थान में मिर्च ज़्यादा पैदा होती नहीं। मिक्स दाल, मिक्स दाल, अच्छा दाल मिक्स तो नीचे भी बनती है, उसको भी राजस्थान बोल दो, मारवाड़ी है ना, कुछ अलग होना, ऊपर से हमने डाला अलग से। हम भी डालती है, अरहर की दाल में भी डाल देते हैं, सब में भी डाल देते हैं। या भी ढाबे में चले जाओ, तो दाल बनी होती है और तड़का लिया और दाल उसमें डाल देते हैं, डाल देते ना दाल तड़का और दाल फ्राई, दाल लाल मिर्च की चूड़ी, उड़द चना दाल मिक्स है, मैं समझ रहा हूँ। हाँ, उड़द दाल बहुत अच्छा, आपको उसको पंजाब, जो दिल्ली, वो कश्मीर तक चले जाएंगे तो उस उड़द दाल का नाम माँ की दाल, माँ की दाल, माँ की दाल, माँ की दाल, हर आपको रेस्टोरेंट में और होटल में माँ की दाल ही मिलेगी, अरहर दाल नहीं मिलेगी। जब उधर से इधर, मथुरा से इधर कनेक्ट करेंगे आपको और भोपाल तक जाएंगे तो आपको अरहर की दाल, अरहर की दाल, अरहर की दाल मिलेगी। जो चीज़ जहाँ ज़्यादा पैदा होती है उस चीज़ का वहाँ पर यूज किया जाता है, ठीक है ना? समझ में आ रही है आपका? ये मारवाड़ी दाल नहीं है, ठीक है, ये मारवाड़ी दाल नहीं है। तो कौन सी? ये तुमने उड़द चना दाल बना दी और ऊपर से लाल मिर्ची डाल दी, बस बात खत्म। ये मारवाड़ी दाल मतलब फर्क क्या है दाल और डिफरेंट? वो लेकिन एक नहीं है, नाम अलग है तो उनका चीज अलग है। लिट्टी में सत्तू भर जा रहा है, ठीक है, इसमें दाल भर रही है और बेसन जा रहा है, ठीक है। बाटी में प्लेन बाटी, मसाला बाटी जो आपने बनाने की कोशिश की, तो बाटी में क्या है, गेहूं और उसको धीमी आंच पे, स्लो कुकिंग, ठीक है, उसको पका के, और वो कठिया गेहूं की बनती है तो उसमें थोड़ा फाइबर रहता है ना, तो उसके अंदर वो धीरे धीरे उसको घी को एब्जॉर्ब करेगी, तो उसको क्रैश करके ऊपर से दाल डाल के उसको दाल बाटी चूरमा, ठीक है। ये दाल आप याद रखो हमेशा, जब भी आप मारवाड़ी दाल बनाएं तो मारवाड़ी दाल में जिंजर, गार्लिक, ग्रीन चिली पेस्ट और कोरिएंडर सीड्स, रेड हॉट चिली और वो
उसके अलावा खुशियाने और लॉट ऑफ हींग, कुछ क्वालिटी की। ये अपने आधे रामदेव की हींग डाल दो, पता ही नहीं पड़ता हींग चली गई है, वो तो छोड़ जाता है। आपने कोटा कचौड़ी खाई होगी, सुनी होगी, तो वो क्या है वहाँ पर घी का ही सबसे ज़्यादा। जो मिठाई, स्नैक्स, राजस्थान का जो खाना है ना,